डेजर्टेशन का टॉपिक बैक पेन ही था। तो मैंने जो आयुर्वेद हॉस्पिटल था वहाँ पर 6 या 7 पेशेंट को बैक पेन का पूरा आसन की प्रैक्टिस करवाई, स्पेसिफिक प्रैक्टिस करवाई और उनमें पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिला। तो वहाँ से मुझे मोटिवेशन आसन, स्पेसिफिक आसन सेकेंड और पोज है, ओरा पोज है, माधुरी आसन है एंड वन आसन है, इस टाइप के बैकवर्ड बेंडिंग के आसन जो स्पेसिफिक आसन है बैक पेन के प्राणायाम, जैसे नाड़ी प्राणायाम हुआ, सीधी प्राणायाम हुआ, सेक्शनल ब्रीदिंग हुआ एंड रिलैक्सेशन की टेक्निक्स जैसे कि MSRD और कुछ मेडिटेशन तो टेक्निक्स को समझी और 1 घंटे इस प्रैक्टिस को डेली किया। 3 महीने में मुझे पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिला, जिसमें डॉक्टर ने यहाँ तक कहा था कि आपकी सर्जरी करवा सकती है। तो ये इस रिजल्ट से मैं 6 महीने में 100% क्योर हो गई। तो मैं इस रिजल्ट को देखकर इस कंक्लूजन पर पहुँची हूँ कि मैं सबको यही एडवाइस करना चाहती हूँ कि योग जो है वो एक अल्टरनेटिव बेस्ट थेरेपी है। तो हमारा जो भी रिसर्च हो तो हम उसमें इस पर और भी ज़्यादा वर्क करने के लिए कह सकते हैं। और मैं यही कहूँगी कि मेरा इस रिसर्च पेपर का यही ऑब्जेक्टिव था कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस अल्टरनेटिव And this shaping is done by neuroplasticity. So basically neuroplasticity is a complex process which involves structural as well as functional changes in our brains in response to various stimuli. So basically what happens in neuroplasticity, the neurons they connect with each other. वो ज़्यादा से ज़्यादा एक दूसरे के साथ So यहाँ पे एक मैंने एग्जाम्पल दिया है that in the right picture you can see that there is a dense forest and there is only rough pathway in this forest. Once you start going through this rough pathway and if this same pathway is used repeatedly and continuously, it might get converted into this stronger pathway, that is the strong connection. It is same for our neurons. Whenever we start performing any new skill or task, initially it might take for us few attempts to generate neural connections in our brain. But if the same task is done repeatedly and continuously, then this will definitely make a stronger pathway in our brains. Due to any cause, the axon of neuron A has got cut off. So what happens that to compensate for this, axon of neuron B elongates its connection and the dendrite of axon B makes connection with the pathway A. So we can compare it with the Patanjali Yoga Sutra. So in the context of your brain, and Vairagya is like the prescriptions, the things you should avoid in the neural injuries. So how you should perform this abhyasa? It should be done for longer duration, uninterrupted practice, and it should be done with the complete dedication. Here I have shown 2 research papers which are the proof of effect of yoga on the neuroplasticity. Now let's talk about this proposed by all the neurons. The mental disorder means mental illness. It depends on the conditions of your mood, thinking and care. The most common types are you know that critical schizophrenia, obsessive and the post-traumatic stress. In Shastra, it is clearly identified as temporary object. But individual self is the real sense of happiness, peace and security. As we know that there are 3 obstacles. Change the slides. They have mentioned the yoga. Now we can apply the meditation. Meditation is not the equanimity of mind, assimilation of teaching the study under the Guru. It is a mind out there to the fusion mountains. That is, look at the tip of the eye, or the basic rule is high duty and simple way. Next slide. The Swami Vivekananda said, if you forget the body in meditation, you will be cut into pieces are not fit at all. Now there are some basic properties. Next. Last is the conclusion. That is the conclusion. There are some points are there: desireless, spiritual stability, emotional stability, tranquility.
consciousness, I am is the existence, so I am. Thank you, sir. विशाल रूपी समुद्र तत्व अपनाना चाहिए, अप्लाई करना चाहिए. जैसे सागर है, ये सब जब बाढ़ आती है, सब नदियों की नाले की गंदगी अपने हाथ लेती है और वो इनस्टेबल नहीं होता. उसी तरह उस समुद्र की तरह हमें अपना विशाल तत्व अपनाना चाहिए, उसे सभी चीज़ों को एक्सेप्ट करना चाहिए. प्रमोद कुमार जी, कृपया स्टेज पे आएँ. आपका मेडिटेशन, स्वान मेडिटेशन, इस पे आपका रिसर्च पेपर है, स्वान मेडिटेशन. गुरुजनों को नमस्कार, अग्रजों को नमस्कार, साथियों को नमस्कार. मैं OPJS यूनिवर्सिटी से PhD परस्यू कर रहा हूँ और मेरा टॉपिक है भारतीय योग परंपरा में ध्यान योग की अवधारणा. तो ध्यान योग पर रिसर्च के दौरान मुझे लगा कि स्वान पे काम करना चाहिए और स्वान प्रिंसिपल जो कि बिहार योगा में स्वामी निरंजनानंद सरस्वती हैं, उनका ये खोज है, उनका इजाद किया हुआ है. सारी बातें हो चुकी है मन के संदर्भ में, तो उसी से रिलेटेड है कि आज के भागदौड़ भरी ज़िंदगी में जो चीज़ें घट रही है, तो उसको कैसे मैनेज किया जाए स्वान मेडिटेशन के थ्रू. स्वान का अर्थ ही है हंस. हंस को जो पसंद है उसको ग्रहण करता है, जो नहीं पसंद है उसको छोड़ देता है. तो कहीं ना कहीं इस मेडिटेशन का भी मूल यही है. और स्वान को अगर हम एलोबरेट करें तो SWAN, स्ट्रेंथ, वीकनेस, एम और नीड, दैट इज स्वान. तो हम इसमें कैसे विजुअलाइजेशन के थ्रू स्वान मेडिटेशन में आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे. इसके की कंपोनेंट हैं. साधना के थ्रू हम जाते हैं, संयम के थ्रू हम जाते हैं, स्वाध्याय के थ्रू जाते हैं, सत्संग के थ्रू भी जाते हैं. नेक्स्ट प्लीज. ये मेडिटेशन सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन के लिए है. इस पावर टूल फॉर इंट्रोस्पेक्शन एंड इम्प्रूवमेंट इन सेल्फ अवेयरनेस एंड प्रमोट पॉजिटिव चेंज इन पर्सनैलिटी, एटीट्यूड, बिहेवियर एंड थॉट प्रोसेस. तो स्वान प्रिंसिपल इन योगा, स्वान के प्रिंसिपल हमने बता ही दिए. इट्स गाइड्स इंडिविजुअल ऑन सिस्टमैटिक जर्नी ऑफ पर्सनल डेवलपमेंट. नेक्स्ट प्लीज. इसकी जो प्रैक्टिस है उसके प्रिपरेशन को अगर हम देखें तो कोई भी मेडिटेटिव पोज में हम कंफर्टेबली बैठ जाते हैं, आंखें बंद रहती है, बॉडी पर पूरा अवेयरनेस होता है, रिलैक्स होते हैं और इंटायर बॉडी रिलैक्स को आइडेंटिफाई करते हैं, उसको नेम भी करते हैं, वीकनेस को भी इसी तरह से विजुलाइज करते हैं. और फिर एम जो होता है उसको भी हम उसमें भी कंप्लीट विजुलाइजेशन के बाद लास्ट में हम एक उसी टाइम उसी समय अगर उसको योग के आसन साथ साथ में उनको योग के आसन भी करने हैं वो बताए, प्राणायाम भी बताए, तो वो नित्य वो अपने निरंतर अभ्यास में वो करेंगे तो कथक योगी बन सकता है, ऐसा मेरा मानना है. को योगी बनाने का मेरा सपना है और ये मेरी कोशिश रहेगी.
exploration for enhancing mental and emotional well-being. योग जिज्ञासु आई डोंट नो मैं एक्सपर्ट हूँ सभी को मेरा मुझे जय श्री कृष्ण। मैं शुरू करने से पहले बता दूँ मैंने अभी पीएचडी स्टार्ट नहीं की है। पीएचडी स्टार्ट करने से पहले जो मेरा ऑब्जर्वेशन था जो मेरे टॉपिक को लेकर उस पर मेरा पेपर बना है। तो नेक्स्ट So nice. Next. Comparison. I will briefly मैं थोड़ा बता देती हूँ. In all the meditation, we can have some commonalities and some differences. But whatever I have discussed, that brain spectrum is our understanding to neural correlation of contemplative practices and their therapeutic potential in promoting mental health and well-being. By modulating brainwave activity, meditation may promote emotional resilience, cognitive flexibility, and adaptive coping strategies in clinical and non-clinical populations. Last. Further research direction should be focused on understanding the causal mechanism underlying meditation-induced change in brain spectral pattern, longitudinal studies to understand the neuroplasticity mechanism underlying meditation-related brain changes. Furthermore, investigating individual differences in meditation-induced spectral pattern may shed light on personalized meditation, prescriptions tailored to specific cognitive and emotional profiles. Thank you. The peak attention, you know, and that particular state is you can, like, for longer time you can focus on a particular thing and you have gained that peak attention. So in that, if you perform that particular practice, sorry? Okay. See, gamma and beta, there is a very little difference, you know. So beta and gamma, they oscillate, but particularly you cannot. You said that your Gamma activity is seen. attention for a Prolonged, yeah, you can gain peak attention. I think what means, because studies of gamma have represented that it is not easy to even detect Yes, gamma. yes, So I absolutely. think it means that, you know, the intensity Actually, of the focus, very focused. Yes, peak. You can have a peak attention. Because of that, I think it is going to be related to love and But kindness. yes, but again, like, I have come across some paper that it is not that easy to measure that gamma waves. You have, because today only I was reading that article, so I could not include in my presentation. But gamma measurement is quite difficult and experiment. Actually, I was trying to. Yes. Okay, but thank you for your question. I will dig deep into the literature. Thank you. Bravely faced all the questions. And Pragya, you have given us a lot of insight on the different brain waves, and definitely all the people who are more curious on that will go and delve more on such research papers and more literature on this. So the next participant is Dr. Palak Trivedi. Dr. Palak Trivedi. So now I would like to call upon चिराग जयकिशन नंधारिया जी. आपका टाइटल है, रिसर्च टॉपिक है इफेक्टिवनेस ऑफ योगा थेरेपी इन रूरल वुमेन. For experimentation, I am working in an everybody center. So we have a patient of diabetes mellitus type 2 is like a rich people. So nowadays we are also getting the disease type 2 diabetes from the villages. So our purpose to just educate the female who is Mata can convert in Nirmata. So who is considered as a home minister also. So we took the 40 people and because I have to conclude in 5 minutes. So I am coming about the next introduction. Next slide. So next.
What is diabetes? That is I don't want to explain because the time limit is there. So objective is evaluate the effect of yoga therapy on reducing the blood glucose level in patients with the type 2 diabetes, rural. So next slide. Please next. Okay. So the study includes 40 women type 2 diabetes in the age group of 35 to 45. And one is control and one is experimental group. By using consent method, inclusive criteria type 2 diabetes female patient. और जो हमने इसमें ध्यान रखा था वो ये था कि nobody has retinopathy, nephropathy, kidney problem, lungs disease, no any other element, serious element is there. And we also suggest during these 3 months, please sugary item और beverages और fast food से वो थोड़ा दूर रहे. ताकि हम लोग और HPSP with the food and with the yoga कैसे वो आ सकता है. So they perform yoga for 60 minutes. We create the intervention program. I have limitation because they wearing a sari. So certain asanas I can't pick. So whatever I can do is Sukshma Vyayam, prayer, pranayam, then Viprit Gani, Surya Namaskar, Dhanurasana, that kind of asanas they can. So my result is I take a T-test calculator graph pad from my use, and statistically you can see the experimental group ratio was 6.42. It's bigger than the 1.729. So we can say T less than 0.005, statistically significant. Next. So this is the graph, and in the present study, blood glucose level HbA1c dropped following yoga, introducing the beneficial impact of the yoga on the management of type 2 diabetes mellitus. Exercise can improve glucose level, uptake by the improving insulin sensitivity and reducing the body adiposity. So ये 2015 में मैंने एक रिव्यू किया था, तो वहाँ पे जो मिला था उससे भी हमको अच्छा रिजल्ट मिला. Yoga is a traditional practice that aims to improve an individual physical, mental, emotional and spiritual well-being. Through yoga therapy program, maybe we can include into a efficient complementary of the integrative therapy program. Soil. Unless and until they get some kind of circumstances, it will not sprout up. The moment it gets some showers of rain, immediately you see small saplings sprouting up. Same way these Vivasana, these are hidden in our chitta in hidden form. And whenever they get conditions like proper birth, proper place and time, it comes up. There are 2 types of vasanas. One is abhivyakta and second one is anabhivyakta. First one, abhivyakta means manifested, is already manifested. And second one is anabhivyakta, which is yet to be manifested. So next slide please. Now vasanas are anadi, beginningless. Nobody knows from where these vasanas are started. For example, anger. If we get angry, we name a person that is an angry man. We do not really know from where this anger has come. It has been transferred from one word to another. So we are not aware that where is the beginning of this particular anger. There are even into much of the details of this. This is an emotional plane of human beings. It has got all the kinds of emotions like fear, happiness, sadness, and the moment it detects emotions, it starts reacting or responding. Reacting is different and responding is different. Next. This is prefrontal cortex, which you see on the other side, logical decision. Okay, now always there is a conflict in between your logical brain and your emotional brain. We are always in 2 minds. Now this is cingulate cortex, which you see over here. It is basically the conflict resolution in between the limbic system and the prefrontal cortex. Whichever brain is stronger, if your prefrontal cortex is stronger, is aware, then what will happen is you will start taking logical decisions. Sympathetic nervous system, that is even drug abuse से बाहर निकलना, suicide tendency को manage करना और diseases को deal reflection. When we leave from yoga well-being to values, the basic यम एंड नियम महाव्रत इसे महाव्रत की ओर ले जाता है, फ्रॉम क्विक फिक्स टू लाइफस्टाइल चेंजेस ले जाता है, फ्रॉम रिवॉर्ड्स टू कंटेंटमेंट हमें ले जाता है, एंड फ्रॉम इंडिफरेंस टू एम्पैथी हमें इस योगा वैल्यूज की
जो डायनामिक्स है वो ले जाता है। उससे परे वेलनेस से परे वैल्यूज से परे जो स्पिरिचुअल वैल्यू है, जो पतंजल अष्टांग में प्रत्याहार। Remember to start incorporating heartful meditation into your routine today and experience the transformative benefit it offers. Thank you. मेडिटेशन को स्वामी विवेकानंद ने उनकी एक बुक में बताया था, पर अभी रिसेंटली ये अभी बहुत ज़्यादा प्रमोट हो रहा है बाय दाजी करके एक ऑथर है, उनके थ्रू। तो ये अभी इतना लाइमलाइट में आया नहीं है अभी रिसेंट में, क्योंकि अपनी मतलब वर्क लाइफ इतनी स्ट्रेस्ड हो गई है। तो उसमें अगर अपन 15-15 मिनट का टाइम, 15 मिनट का ही मेडिटेशन होता है, 15 से आधे घंटे का, तो उसमें अगर अपन वर्क प्लेस पे भी अगर 15 मिनट निकाल के इस मेडिटेशन को करें तो हम अपने वर्क परफॉर्मेंस को इंक्रीज़ कर सकते हैं और स्ट्रेस को कम कर सकते हैं। सर एक बार अपन को शुरुआत 3 सिटिंग से तो करनी चाहिए, और दिन में 3 बार करनी होती है, मॉर्निंग, इवनिंग एंड रात को सोते टाइम, है ना? ठीक है, एक बार आप शुरुआत करने के लिए 3 टाइम्स मतलब 3 दिनों तक कर सकते हैं, 3 बार। जी जी एक्चुअली आई एम ऑल्सो, मतलब मैं अभी रिसर्च कर रही हूँ इस पे, है ना? मैं अभी प्रैक्टिकल, मैंने खुद ने अभी 3 से 7 सेशन ही अटेंड करे हैं, तो मैं खुद अभी इस पे रिसर्च कर रही हूँ। तो मेरे साथ में जो फेलोज हैं उन्होंने बताया कि वो जब वर्क लाइफ में मतलब कॉर्पोरेट लाइफ में जब इसको यूज़ कर रहे हैं तो उनको ज़्यादा इजी हो रहा है लोगों से डील करने में। थैंक यू। क्या कोई और रिसर्च स्कॉलर्स हैं जो आज पेपर प्रेजेंट करना चाहते हैं? तो वो अपना नाम बता सकते हैं। और जब तक आप लोग डिसाइड कर रहे हैं तब तक मैं संगीता अग्रवाल, MSc सेमेस्टर 4 की छात्रा, लकुलिश योग यूनिवर्सिटी से, कि सारे सेंस ऑर्गन्स, यानी कि ये प्राइमरी सोर्स ऑफ नॉलेज है जिसे हम प्रत्यक्ष प्रमाण के रूप में भी जानते हैं, जो एकदम हमारे सेंस ऑर्गन्स के हमें प्राप्त होता है। सेंसुअस परसेप्शन, वेस्टर्न वर्ल्ड हो, यहाँ तक कि चारवाक भी हों, वो इसको मानते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो लेट अस रीकैप कि व्हाट आर द सेंसेस। 5 ज्ञानेंद्रियाँ, 5 कर्मेंद्रियाँ और अंतःकरण, मन, बुद्धि, अहंकार, इसको परसेप्शन के सेंसेस के रूप में माना गया है। वेस्टर्न वर्ल्ड भी तकरीबन इनको सबको मानता है। मन, बुद्धि, अहंकार में कई बार वो मिक्सअप करते हैं। तो नेक्स्ट एक रिकैप और है कि सोर्सेज ऑफ नॉलेज, जितने भी इंडियन स्कूल्स ऑफ फिलॉसफीज़ हैं वो कुल मिला के मैक्सिमम 6 सोर्सेज ऑफ नॉलेज मानते हैं। परसेप्शन, इन्फ्रेंसेस, शब्द, उपमान, अर्थापत्ति एंड अनुपलब्धि। और इन सभी के अंदर सभी लोग परसेप्शन को, आप देखेंगे मॉडर्न साइंस से लेके नीचे चारवाक तक, परसेप्शन को मुख्यतः से माना है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज़। तो अब देखते हैं कि परसेप्शन के टाइप्स क्या हैं। अब मुझे बहुत स्पेसिफिक सूत्र तो याद नहीं है, लेकिन पतंजलि जी ने एक जगह एक सूत्र में बोला है कि किस तरीके से, एक जगह उन्होंने शायद विभूति बात में ये बताया है कि कैसे चित्त और आत्मा कैसे बिल्कुल अलग अलग जाति और देश को हम कैसे ये सिद्धि प्राप्त होती तो हम उसको जान सकते हैं, है ना? उन्होंने विभूति बात के एंड के सूत्र में बताया है। तो उन्होंने कहा है कि उसकी व्याख्या करें तो चित्त और आत्मा जो हैं वो बिल्कुल अपने आप को न देश, काल, जाति से अलग नहीं कर पाते हैं, ठीक है ना? क्योंकि वो बिल्कुल ट्विन से भी ज़्यादा हैं, एक के ऊपर एक ही लगे हुए हैं, वो साथ ही जीते हैं, एक ही देश में हैं, एक ही काल में हैं, हर तरह से एक हैं। तो इसीलिए आत्मा हमेशा अपने आप को चित्त, और चित्त जो उसे दिखाता है वही समझता है, ठीक है? तो एक बात हुई यहाँ पे। अब ये तो उन्होंने कह दिया वो ज्ञानी पुरुष हैं, हम कैसे समझें इसको, वो उपकरण कैसा है? तो उपकरण के लिए एक मैं आपको एक दृष्टांत देना चाहूँगी कि कोई भी चीज़ हम किस प्रकार देख सकते हैं, ठीक है? आप एक रेलवे प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं, ट्रेन पास हुई, आप देख सकते हैं क्योंकि आप स्थिर हैं और ट्रेन की गति है, आप देख सकते हैं कि ट्रेन की गति है। किंतु ये पृथ्वी जो है 1 लाख किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से घूम रही है, हम सब इसी पे हैं। आप एरोप्लेन में जाएं 960 किलोमीटर प्रति घंटा, कितना फील होता है हमें जबकि हम अंदर बैठे हैं ऐसे एनवायरनमेंट में, लेकिन पृथ्वी पे फील नहीं होता। Session, we all enjoyed and learned so many things from
all the presenters. At the end of the session, first of all, I would like to invite our chairperson on stage to say a few words. So I was just going through all the presentations, whatever the presenter presented. Of course, there were few absentees are there. Some presentations, actually they did it without PowerPoint, but it's okay. But the most important from next time onwards should be, so majority of presentations, their topics was quite interesting. Some were actually, it was a bit understandable. But few tips or suggestion from my side is, so you need to be bit time bound, so you need to cultivate the time bound thing. So whatever they have told, 5 minutes means 5 minutes. Of course, a bit extension can be given based on some case per case, but not more than like 5 minutes maximum, they can 6 minutes. So most important what I saw, please concise the introduction part. So what many of the presenters were doing is they were giving a very elaborated introduction. So please concise that, shrink the introduction. Please focus on the whatever your title, your findings. So if it's the research article, so your research findings, your results, more towards your methodology, at least 1 or 2 slides on your methodology. Or if it's a review, so few studies, their findings. So that should be the more highlight. Like it depends on what kind of presentation, the research or review or whatever, or meta-analysis, whatever you have done. Like based on that, your findings should be projected on the slide. And reference or bibliography was not there. So like that's the thing the presenters should, from next time onwards, should keep a note of that reference or bibliography part. It's very important, like from where you I mean, if it is an innovative, some research like what one of the youth, that social isolation, what that topic, I think there was no research in India like about that in youth, about that awareness or whatever, the forcing the social isolation thing. Of course, for the that's right, it's okay. That's the thing. Like for that, of course, like still they can find some related reference and they can quote it. So I think this much is enough. So majority of them have done a very good job. So the presentation was good. Still there was some scope to improvement. Definitely. So like you will do it in the future presentations. So wherever you are presenting in other ways or writing a research article, so you need to take some few suggestions from your guide or your peer reviewer, like whoever. So thank you very much. We are concluding the session now. Yes. All of you, and congratulations to all of them. Those are recent papers. Respected chairperson, इसमें जो सारी बातें कह दी उससे मैं भी सहमत था. Dear friends, in your research areas, dividing increasement by the smallest step forward. ओके सर, अभी मैं आपको यहाँ पे आमंत्रित करना चाहूँगी. आप 2 शब्द कहिए, सेशन को कंक्लूड करें. बहुत सारी बातें आई कि कौन सी चीज़ में क्या कर सकते हैं. और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि एक चीज़ मैं इसमें इंक्लूड करना चाह रहा था कि हमने आसन और प्राणायाम की बात बहुत सारी की. लास्ट में बहन है ओम के उच्चारण की बात. तो हम कोशिश थोड़ा सा मेडिटेशन की तरफ भी, क्योंकि जितने भी हमारे 15 पेपर पढ़े गए लगभग मेडिटेशन के शायद 1 या 2 पेपर, एक पेपर में हाँ, तो उसको
मन की जो सबसे बड़ी समस्या है, अगर प्राणायाम की हम बात करें तो प्राणायाम मन को कंट्रोल तो करता है, लेकिन आसन भी बॉडी को कंट्रोल कर रहा है, लेकिन दोनों ही एक सिक्के के पहलू हैं, शरीर और मन। तो हम ऐसा सोचें कि मेडिटेशन को भी, और जो सबसे बड़ी बात है वो ईश्वर प्रणिधान की है, उसकी बात हम कभी पेपर में, सेमिनार में भी उनको प्रेजेंट करें, इंक्लूड करें कि सबसे बड़ी जो समस्या आज के समय में है समाज को जोड़ के, कि योग का समाज पे क्या इफेक्ट है और समाज की सबसे बड़ी समस्या क्या है। तो मन से गांधी जी ने राम नाम चिकित्सा की बात कही है, पहली बात। दूसरी बात कुछ प्राकृतिक चिकित्सा की, और तीसरी बात की अपरिग्रह की सबसे बड़ी जो समस्या है चीज़ों को जुटाना और उससे दुखी होना। जैसे हम पहले बोलते थे किसी को कि अगर किसी की शादी हुई तो हम बोलते थे कि वर्कलोड बढ़ गया और अब एक से दो पेट हो गए, ऐसा हम बोलते थे कि अब तुम्हें ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। लेकिन आज के समय 2 और फिर फैमिली 3 और ग्रुप का 4, ऐसे करके 4 पेट हो गए। तो शुरू से, और ये 4 पेट बचपन से ही है। तो ऐसे करके कुछ हम उसकी बात करें कि कैसे हम परिग्रह की और परिग्रह के अपने जीवन में अपना के मानसिक शांति कैसे हम पा सकते हैं। कुछ आज के समय में चल रहा है स्वर योग को लेके, स्वर की भी बात करें कि प्राणायाम जब हम कर रहे हैं तो उससे पहले स्वर की कुछ डेप्थ बातें आ जाएगी। जब तक हम स्वर को नहीं जानेंगे तब तक प्राणायाम को थोड़ा ज़्यादा मुश्किल है, थोड़ा उसकी बात करें और अपनी बातें रखी। और सेमिनार से एक नया मंत्र, नई चीज़, जैसे समुद्र को मत के अमृत मिला, तो वैसे ही इस मंथन से भी हमें एक नई चीज़ मिलेगी और हम योग की फील्ड में एक नया आयाम रख पाएंगे। आप सभी का धन्यवाद, आप सभी के प्रति आनंदमय हो। आइए सुंदर लाजवाब परफॉर्मेंसेस का दौर शुरू करते हैं। Our very first performer for Saraswati Vandan is Asmi Jain from BSc, Lakulish Yoga University, Ahmedabad. Please give her a good round of applause. Saraswati, Saraswati,
सब उनसे अपनी विशेष पूरी करवाते हैं, तब रावण ने कैलाश को उठाकर लंका ले जाना चाहा। उस समय शिव के गुस्से से बचने के लिए रावण ने कुछ स्वर गाए, जिसको हम शिव तांडव के नाम से जानते हैं। शिव तांडव के परफॉर्मेंस के लिए I'd like to invite Dharti on stage. Please give her a good round of applause. जलप्रवाह पावितस्थले गलेवलं जलम्बितां भुजङ्गतुङ्गमालिकां डमट्टमट्टमट्टमन्निनादवड्डमर्पयं चकार चण्डताण्डवं तनोतु नः शिवः शिवम् झटागटाः सम्भ्रमभ्रमन्निलिम्प निर्झरी विलोलवीचि वल्लरी विराजमानमूर्धनि धगद्धगद्धगज्ज्वलल्ललाटपट्टपावके किशोरचन्द्रशेखरे रतिप्रतिक्षणम् जटाभुजङ्गपिङ्गळस्फुरत्फनामणिप्रभा कदम्बकुङ्कुमद्रव प्रलिप्तदिग्वधूमुखे मदान्धसिन्दूरस्फुरत्वगुत्तरीयमेदुरे मनोविनोदमद्भुतं बिभर्तु भूतभर्तरी शिवाय करालभालपट्टिका धगद्धगद्धगज्ज्वलद्धनञ्जयाहुतीकृत प्रचण्ड पञ्चसायके धराधरेन्द्रनन्दिनि कुचाग्रचित्रपत्रक प्रकल्पनैकशिल्पिनि त्रिलोचने प्रतिर्मम नवीन मेघमण्डली निरुद्ध दुर्धर स्फुरत् कुहूनिशीथिनीतमः प्रबन्धबद्धकन्दरः निलिम्प निर्झरीधरस्तनोतु कृत्तिसिन्दुरः कलानिधानबन्धुरः श्रियं जगद्दुरन्धरः जलप्रवाह पावितस्थले गलेवलं जलम्बितां भुजङ्गतुङ्गमालिकां डमट्टमट्टमट्टमन्निनादवड्डमर्पयं चकार चण्डताण्डवं तनोतु नः शिवः शिवम् झटागटाः सम्भ्रमभ्रमन्निलिम्प निर्झरी विलोलवीचि वल्लरी विराजमानमूर्धनि धगद्धगद्धगज्ज्वलल्ललाटपट्टपावके किशोरचन्द्रशेखरे रतिप्रतिक्षणम् जटाभुजङ्गपिङ्गळस्फुरत्फनामणिप्रभा कदम्बकुङ्कुमद्रव प्रलिप्तदिग्वधूमुखे मदान्धसिन्दूरस्फुरत्वगुत्तरीयमेदुरे मनोविनोदमद्भुतं बिभर्तु भूतभर्तरी शिवाय करालभालपट्टिका धगद्धगद्धगज्ज्वलद्धनञ्जयाहुतीकृत प्रचण्ड पञ्चसायके धराधरेन्द्रनन्दिनि कुचाग्रचित्रपत्रक प्रकल्पनैकशिल्पिनि त्रिलोचने प्रतिर्मम नवीन मेघमण्डली निरुद्ध दुर्धर स्फुरत् कुहूनिशीथिनीतमः प्रबन्धबद्धकन्दरः निलिम्प निर्झरीधरस्तनोतु कृत्तिसिन्दुरः कलानिधानबन्धुरः श्रियं जगद्दुरन्धरः अकल्व सर्वमङ्गलाकलाकदम्बमञ्जरी रसप्रवाह माधुरी विजृम्भणा मधुव्रतं स्मरान्तकं पुरान्तकं
शिवाय। जयत्पदभ्रविभ्रमभ्रमद्भुजङ्गमश्वसद्विनिर्गमक्रमस्फुरत्खरालभालहव्यवाढ्विविद्धिविद्धिविद्वनन्मृदङ्गतुङ्गमङ्गलध्वनिक्रमप्रवर्तितप्रचण्डताण्डवः शिवा। इदं हि नित्यमेव मुक्तमुक्तमोत्तमं स्तवं पठन् स्मरन् ब्रुवन्नरो विशुद्धिमेति सन्ततं। हरे गुरौ सुभक्तिमाशु याति नान्यथा गतिं। विमोहनं हि देहिनां सुशङ्करस्य चिन्तनं। विमोहनं हि देहिनां सुशङ्करस्य चिन्तनं। विमोहनं हि देहिनां सुशङ्करस्य चिन्तनम्। ॐ नमः शिवाय। बजाओ ताली, वाह क्या बात है। वंडरफुल वंडरफुल। गुजराती में ऐसा बोला जाता है, अगर कोई फंक्शन अच्छा जाता है, अगर प्रोग्राम बढ़िया होता है तो गुजराती का बोलता है भुक्का गाड़ी ना खाया जाए। तो अभी भी शिव जी डांस बहुत ही बढ़िया किया था। एक बार जोर से तालियां हो जाए दोबारा। वाह वाह मेरे दोस्त वाह। परफॉर्मेंसेस का दौर आगे बढ़ाते हुए आई वुड लाइक टू इनवाइट प्रिया सोनी फॉर भजन ऑन स्टेज। जय भगवान सभी को। जय भगवान सभी को। आज के नाटक द्वारा हम प्रस्तुत कर रहे हैं कि एक्यूप्रेशर, योगासन, योगिक डाइट और सामान्य मनुष्य और साधक के जीवन चरित्र जीवन शैली जो है उसके डिफरेंस दिखा रहे हैं। तो पहले एक्ट से हम ये दिख रहे हैं कि जो कभी मैंने तो तुमसे नहीं होगा। नहीं, अभी 2 दिन की तो बात है, मैं कर लूंगी। तुमसे नहीं होगा। नहीं, मैं कर लूंगी। ठीक है, तुम्हारी मर्जी। दिया काव्या को कुछ हो गया है। अरे सोख सुंगानी पड़ेगी इसे तो। काव्या, अरे रुक जाओ भाई, रुक जाओ। इसको चक्कर है, ऐसा मत करो। अरे रुको, मैं एक्यूप्रेशर करता हूँ, सब ठीक हो चुका है। आप लो, पैर के इधर एक पॉइंट है, मैं पॉइंट दिखाता हूँ, बस आप इधर पॉइंट दबाओ, मैं मुंह पे पॉइंट दबाता हूँ। पानी लेके आओ, पानी लेके आओ। शुरू हो रहा है, बस धीरे 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 शुरू हो रहा है, बस धीरे धीरे ऊपर करा। बस अच्छे से पानी पिलाओ। अच्छा लग रहा है, पहले से अच्छा लग रहा है। हो गया बढ़िया। हाँ ठीक हो? हाँ मैं ठीक हूँ। थ्रू हम बैक पेन को कैसे रिकवर कर सकते हैं, आइए छोटी सी नाटक के थ्रू हम ही जानते हैं। चलिए ध्यान दीजिए बिल्कुल। ओफो, ये डब्बा तो उठ ही नहीं रहा, अब क्या करूं मैं? नहीं, उठा उठा। अरे वाह, वेरी गुड। चलो, क्या हुआ? बैक पेन हो गया। विवेक, ये डब्बा उठ रहा था। अच्छा, इसकी कमर भी उठ गई साथ साथ। खड़े हो जाओ, सही से खड़े हो जाओ। ऐसे नहीं, सही से सही। मैं आपको एक पॉइंट करता हूँ थोड़ी देर के लिए। ये वाला पॉइंट करना है, नंबर पे पेन है। हो रहा है, अच्छा फील हो रहा है।
देवांशु, देवांशु। हाँ बोलो बोलो भाई। ये ले गर्म पानी पी ले थोड़ा। नहीं नहीं, मुझे कोई गर्म पानी की जरूरत नहीं है, तुम पियो गर्म पानी। अरे पी ले, तेरे पिंपल्स हुए वो भी ठीक हो जाएंगे। अरे पिंपल के लिए यार फेस पैक लगाऊंगा, फिर देखना तुम लोग मेरा निखार। देख लेंगे, देख लेंगे। कोई नहीं, अभी लगा के आता हूँ, फिर देखना। हाँ देखते हैं, चल। आप भी देखना। अरे क्या हुआ दिवांशु? कुछ नहीं, सब बढ़िया है। क्या हुआ? कुछ बोलेगा तो उसका हल निकलेगा। अरे हल तो सब चीज का ही है, कोई दिक्कत नहीं है। अरे एक मिनट आता हूँ ना। क्या हुआ? मुझे लगता है इसका पेट खराब है शायद। तो अब क्या करें? मेरा एक फ्रेंड है, वो योगासन सिखाता है, उससे बात करके देखती हूँ। हाँ तो ठीक है, ऐसा हो तो उसे आज घर पर ही बुला लेते हैं। हेलो। हेलो। हाँ देव। हाँ वो मेरे भाई को पता नहीं कुछ पेट में गड़बड़ लग रही है, तू आ सकता है आज? हाँ मैं आज आ जाऊँगा, फ्री हूँ। हाँ ठीक है। ओके। चल सभी क्या? बस बढ़िया। क्या हुआ तुम्हारे भाई को? पता नहीं, सुबह से पेट पकड़ के दौड़ रहा है बस। बराबर। ये लो। और भाई क्या हाल चाल? नमस्कार। बढ़िया बढ़िया। क्या हाल चाल? बढ़िया बढ़िया। समय? अरे मैं एक वॉशरूम गया है शायद। कहाँ गया ये? वॉशरूम गया लगता है। वॉशरूम? सुबह से कितनी बार जा चुका है वो? 3-4 बार। ओहो। हाँ। बराबर। क्या लगता है तुम्हें, क्या हुआ होगा उसको? उसे? शायद पेट में कुछ हुआ होगा, देखते हैं उसको। हाँ। कॉन्स्टिपेशन। भाई तुझे कॉन्स्टिपेशन हुआ है तो बोल दे घर पे तुझे। नहीं तेरी बहनें तो है। अरे हाँ कुछ ऐसा ही कुछ। हाँ अब तेरी लाइफस्टाइल कैसे, मतलब डाइट और वो सब, सुबह से क्या करता है तू? अरे डाइट तो सब बढ़िया है, बस वो थोड़े दिन से थोड़ा शादी में सीजन है ना, तो करके ऐसा जा रहा हूँ, बाकी सब बढ़िया है। नहीं नहीं, ये हमारे साथ कभी भी टाइम पे नहीं खाता है और रोज रात को फ्रिज में ढूंढता है, देर रात तक जागता है। हाँ तो इसी वजह से तेरा पेट खराब है। तो अब मैं तुझे 3-4 आसन बता रहा हूँ, वो तुझे रोज सुबह करना है। और आसन? हाँ, और एक गर्म पानी सुबह पीना है तुझे, उठ के तुरंत मलासन में बैठ के। हाँ ओके। तो मैं तुझे आसन बताता हूँ, देख ले। ऊपर नीचे दोनों, ऊपर ग्रिप करके फिर इंटरप्रिटेशन करके ऊपर खींचना, एक्सेल करके नीचे। इसके 8 फ्रीक्वेंसी करनी है, 8 फ्रीक्वेंसी। दूसरा आसन है तिरस्तासन, दोनों पैर को शोल्डर लेवल डिस्टेंस, इधर करके हाथ दोनों ऊपर, एक्सेल करके एक साइड झुकना। हाँ सीधे सीधा। एक्सेल करते हुए पीछे जा रहा है, जितना हो सके उतना पीछे। इंजन करके वापस आगे। इसके आपको दोनों साइड 32 रेप्स करना तो आज के आखिरी नाटक द्वारा हम साधक जो आसन सुबह 5 बजे साधक सुबह 7 बजे, सुबह 8 बजे, 8:15 बजे, मेरा हेडेक होता है, बैक पेन होता है, इसका मोटापा
3 बजे सोता हूँ। तो आपकी पूरी लाइफ लैपटॉप और फ़ोन के साथ ही जुड़ी हुई है? हाँ। ऐसा है। तो आप इधर आ जाओ, मेरे साथ आधे आधे घंटे रोज करो आप आसन, इससे आपका देखते हैं मोटापा कम होता है या नहीं। तो रोज रोज आधे आधे घंटे आ जाओ रोज आप। आ जाओ। तो आधा घंटा तो अब सब कुछ सही हो गया। आप बताइए, अपने अनुभव बताइए आप। पहले मेरी लाइफस्टाइल बहुत ख़राब थी। मैं रात को 2-3 बजे तक फ़ोन में घुसा रहता था, लेट उठता था, लेट सब करता था। मेरा मेंटल हेल्थ भी सही नहीं थी, फिजिकल भी मैं फिट नहीं था, बहुत मोटा था, तो लोग चिढ़ाते थे। उसके बाद इनको देखा मैंने, इनके साथ डेली काम किया तो मेरी बॉडी पे असर हुआ। मेंटली मुझे बहुत शांति मिली योगा करने से। और मैं यही चाहता हूँ कि आप सब लोग भी ऐसे अपनी लाइफस्टाइल चेंज करें। बहुत बहुत धन्यवाद। Give them one more round of applause, guys. हेलो। शोल्डर फ्रोजन की प्रॉब्लम जिसको होगा वो नहीं उठाएगा अपना हाथ, बाकी सभी लोग हाथ ऊपर करें। जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे इनका। बहुत बहुत धन्यवाद।